A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos of class 12th accountancy, we already discussed a lots of the theoretical as well as the practical questions related to the redemption of debenture. You know very well there are basically two methods by which any company redeem its debenture. The first one is a lump sum payment method and second will be a draw of lots method. In the lump sum payment method, company redeem its debenture in one installment after expiry of specified period. And in the draw of lots method, you know very well, company redeem its debenture in various installment, and these installment are in equal amount or are in unequal amount. So जो ये ड्रॉ ऑफ लॉट मेथड्स में हम लोग इन डिबेंचर को रिडीम करते हैं उसमें या तो इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है या तो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होती है. सो ऑल दीज बेसिस वी ऑलरेडी सॉल्व अ लॉट्स ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. सो अगर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हिस्ट्री पे डिस्कस करें तो वी ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 which are related to the lump sum payment method, question number 3, question number 7, as well as we are already discussed the question number 13 and question number 15, by which we can easily identify and discuss a lots of the method by which any company redeem its debenture. So today on 3rd August 2021, let's we conclude the last chapter of part A, that is in redemption of debenture. And after 3rd August, thereafter we will move to the part B. And you know very well in the part B, we are discussing about the various tools and techniques by which we analyze the financial statement of companies. So without creating delay, let's we start the last question of the redemption of debenture, and the last question of the redemption of debenture is question number 14. And in the question number 14 you can see that company redeem its debenture in unequal installment, and company wants to create a DRI account and DRR account as per the given guideline of SEBI and rules is specified under the Companies Act 2013. So the question number 14 says that Priya Limited, an authorized and unlisted company, issued 30,000 8% debenture of 200 each on 1st August 2011. So in the question number 14, प्रिया लिमिटेड जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है उसने 30,000 कितने परसेंट डिवेंचर 8% डिवेंचर 100 रुपए के इशू किए, एंड सॉरी फॉर 200 रुपीज के इशू किए ऑन अगस्त 1 2011. अगस्त 1 2011, and company wants to redeem its debenture in the following way: 31st March 31st March 31st March 31st March, and redemption will be started from 2015. कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 2015 से रिडम्पशन स्टार्ट करेगी. ओके, सो रिडम्पशन के लिए 2015 में कंपनी ने डिसाइड किया कि वो आउट ऑफ 30,000 6,000 डिबेंचर को रिडीम करेगी. 16 में वो 7,000 डिबेंचर को रिडीम करेगी, 7,000 डिबेंचर्स को. 17 में 7,000 अगेन डिबेंचर को रिडीम करेगी, और 2018 में वो 10,000 डिबेंचर को रिडीम करेगी. So you can see that in this question, company redeem its debenture. The total 30,000 debenture. 6,000 plus 7,000 13, 13 7 20, 10 20 10, 30,000.
टोटल 30,000 डिबेंचर को रिडीम करने के लिए उसने डिफरेंट डेट यानी इंस्टॉलमेंट डिसाइड की, एंड ऑल दीज इंस्टॉलमेंट आर एन अनइक्वल अमाउंट, मतलब इनका इक्वल अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे डीआरआर का क्रिएशन, डीआरआर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने का जो प्रोसीजर है और डीआरआई का क्रिएशन बहुत ही चैलेंजिंग बन जाता है। एज वेल एज इनकैशमेंट ऑफ डीआरआई इज ऑल्सो बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 1,75,000 ईच to DRR account on 31st March 2012 and 31st March 2013, और ये भी डिसाइड किया गया कि DRR का जो क्रिएशन है वो कैसे किया जाएगा। DRR के क्रिएशन के लिए भी डेट डिसाइड कर दी गई, पहले से बता दिया गया कि 31st March 2012 एंड 2013 में आप कितना क्रिएशन करेंगे। 31st मार्च 2012 में आप क्रिएट करेंगे 1,75,000 का और 1,75,000 का, ये भी बता दिया गया। यानी आपको ये हिंट दे दिया गया है कि डीआरआर के क्रिएशन के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि 2012 में 1,75,000 एंड 2013 में 1,75,000 ट्रांसफर करना है, एंड बैलेंस जो भी बचेगा इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन 31st मार्च 2014। तो बैलेंस कितना बचेगा, आपको डीआरआर के लिए क्या रूल है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 डीआरआर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन, यानी जितना डिबेंचर रिडम्पशन के लिए प्रिपेयर है, ड्यू है, उसका 10% आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। जैसे 30,000 डिबेंचर आपको रिडीम करना है, जरूर वेरियस इंस्टॉलमेंट में करना है, लेकिन टोटल डिबेंचर कितना रिडम्पशन करना है 30,000। एक डिबेंचर कितने का है टोटल, एक डिबेंचर कितने का है 30,000 इंटू 200, यानी टोटल डिबेंचर कितने के हो गए 60 लाख रुपीस के। टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर 60 लाख। 60 लाख का आपको कितना क्रिएट करना था 10%, यानी 6 लाख डिबेंचर आपको डीआरआर क्रिएट करना है। आपने ऑलरेडी कितना बना के रख लिया है 3,50,000 का डिबेंचर आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रख लिया। तो आपको और कितने डीआरआर बनाने की जरूरत पड़ेगी, टोटल आपको जरूरत कितनी थी डीआरआर की, टोटल हमें डीआरआर का अगर क्रिएशन करना है तो वो 60 लाख का 10% करना है, यानी कि 6 लाख, जिसमें से 1,75,000 2012 में, 1,75,000 2013 में बन चुका है, यानी 350 बन चुका है, बचा कितना है 250। So 2,50,000 DRR made on yes 31st March 2014। और यहां पे एक शर्त भी पूरी हो जाती है, द क्रिएशन ऑफ DRR बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर at least 10% of the total amount of debenture due for redemption before the redemption and the date is 31st मार्च, यानी कि रिडम्पशन कब से करना है 2015 31st मार्च, तो जिसका ठीक पहले वाला 31st मार्च कब आएगा 31st मार्च 2014। तो 2014 तक आपका टोटल डीआरआर बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी जर्नल एंट्री पे हम लोग मूव करते हैं, जो मेन सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। जर्नल एंट्री नंबर 1, आपने स्टार्टिंग कहां से किया, इशू से। अगस्त 2011 में आपने डिसाइड किया कि आपने डिवेंचर इशू किया, क्योंकि क्वेश्चन में इशू भी किया गया, इशू किया गया अगस्त 1 2011 में। और क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिडम्पशन की कोई कंडीशन नहीं है, तो हम क्या मान के चलते हैं पार। सो आप सबसे पहले एंट्रीज क्या पास करेंगे, सबसे पहले एंट्रीज होंगी 2011 अगस्त 1। 2011 अगस्त 1 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिबेंचर को इशू करेंगे। इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाउ मेनी डिबेंचर्स 30,000 200 का, इट मीन 60 लाख। फिर इस 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहां ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर अकाउंट।
Okay, so this is the first two entries which are related to the issue of debenture, and after that हम लोग क्या करेंगे, DRR का क्रिएशन करेंगे इन द थ्री इंस्टॉलमेंट. देखो DRR का भी क्रिएशन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है. तो आप वन बाय वन 31st March 2012, 31st March 2013 and 31st March 2014 आप DRR का क्रिएशन करेंगे. तो एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू DRR, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR. 3 बार एंट्रीज पास करेंगे क्योंकि DRR का क्रिएशन 3 बार में हुआ. अमाउंट इट इज वेरी क्लियर, 1,75,000, 1,75,000 and last is 2,50,000. After creation of complete DRR before the redemption of debenture, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद सर हम लोग बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी पहला डिबेंचर रेडी कवर्ड रिडम्पशन के लिए 31st March 2015 को 6,000 डिबेंचर हमें रिडीम करना है. तो उसके बराबर, उसके अमाउंट के बराबर का 15% हमें DRI क्रिएट करना पड़ेगा ऑन जस्ट बिफोर द रिडम्पशन ऑन 30 अप्रैल. सो 2014 में अप्रैल 30 में हम लोग क्या करेंगे, DRI क्रिएट करेंगे. और DRI की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाता है करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना इट इज अ वेरी इजी थिंग, बट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इतना बड़ा होगा, अभी आप देखेंगे कि शायद ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, 15% की रेट से जितना डिबेंचर करेंट ईयर में रिडम्पशन, मतलब नेक्स्ट ईयर में रिडम्पशन के लिए ड्यू है, जैसे 6,000 है, तो 6,000 का 200 रुपीज के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हुई, 12 लाख. 12 लाख का कितना परसेंट DRI बनाना पड़ता है, 15%. 12 लाख का 15% आपको DRI बनाना पड़ेगा 1,80,000. और फिर दूसरा रूल क्या है कि जिस दिन रिडम्पशन करना है उस दिन रिडम्पशन के डेट पे आपको क्या करना है, इस DRI को इनकैश करना है. लेकिन यहां पर आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं कि यहां आपको रिडम्पशन एक ही बार नहीं करना है, यहां रिडम्पशन आपको बार बार करना है. तो रूल क्या होता है कि जब भी आप बार बार आपको इंस्टॉलमेंट पर रिडम्पशन करना है तो एक बार आप पहले टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए और लास्ट टाइम इन कैश करिए, और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मनी पैसे को इन्वेस्ट और इन कैश करते रहिए. जैसे पहली बार आपने 6,000 इंटू 200 यानी 12 लाख का 15% यानी 1,80,000 का DRI बना लिया. नेक्स्ट टाइम आपको 7,000 डिबेंचर का रिडम्पशन करना है तो आपने 6,000 डिबेंचर के बराबर DRI बना के रखा हुआ है, इसको इनकैश मत करिए. 1,000 और जो एडिशनल आपको रिडम्पशन करना है उसका 200 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 1,200 कितना हो जाएगा, 2 लाख. 2 लाख का 15% कितना होगा, यस 2 लाख का 15% 30,000. 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से इन कैश सॉरी इन्वेस्ट कर देंगे. सो ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे आपको देख लो 6,000 7,000, तो एडिशनल कितना डिबेंचर रिडम्पशन करना है, 10,000. तो 10,000 का और DRI बना लो. यहां तो 7,000 डिबेंचर इस साल भी रिडीम करना था, इस साल भी, यानी आपके पास पहले से 6,000 का इन कैश मतलब आपने इन्वेस्ट किया था, 1,000 का और कर दिया, तो टोटल कितना रिडम्पशन के लिए पैसा अवेलेबल हो गया, 7,000 के लिए. तो इस साल तो आपको फिर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों नहीं जरूरत है सर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 7,000 के बराबर का क्या है, पैसा इन्वेस्ट है. फिर 7,000 के बाद आपको 10,000 के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, तो इस साल आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 3,000 और करना पड़ेगा. ठीक है, पहली बार 6,000 का DRI बना लो, फिर इंक्रीज होता है तो इन्वेस्ट करते रहो, और डिक्रीज हो रिडम्पशन के लिए तो इन कैश करो. ठीक है, तो DRI टू बैंक आपने, ठीक है. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 14 को किया इन्वेस्ट,
अब हमें इन कैश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में फिर से रिडम्पशन करना है, तब हम रिडम्पशन कर लेते हैं। रिडम्पशन करने की क्या एंट्री होगी? रिडम्पशन करने की एंट्री होगी फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हम लोग क्या करेंगे, 2014 के बाद 2015 मार्च 31 को रिडम्पशन करेंगे 6000 डिबेंचर। रिडम्पशन करने की एंट्री क्या होती है? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर अगेन डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। और अमाउंट कितना डिबेंचर रिडीम करना है? 6000 इंटू 200, यानी कितना? 12 लाख रुपए के बराबर का डिबेंचर रिडीम करना है, 12 लाख। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का रिडम्पशन। और आपको पता है रिडम्पशन के पहले इनकैश करते हैं, तो इनकैश इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर फिर से रिडम्पशन करना है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब यहां पे हम रिडम्पशन के बाद क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट डीआरआर ट्रांसफर करेंगे जर्नलिज्म, सेम डेट को। डीआरआर को कहां ट्रांसफर करेंगे? जर्नलिज्म में। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने जो डीआरआर बनाया है, टोटल कितना बनाया है? 6 लाख। जरूर इंस्टॉलमेंट में बनाया, लेकिन टोटल कितना बनाया है? 6 लाख का डीआरआर बनाया है। तो वो 6 लाख का जो डीआरआर वो कितने डिबेंचर्स के लिए बनाया है? 30,000 डिबेंचर्स के लिए बनाया है। ठीक है, और उसमें से आपको कितना रिडम्पशन कर दिया? 6000। तो 6000 के बराबर का जो डीआरआर होगा वो आप ट्रांसफर कर दोगे जर्नलिज्म में। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5, 1,20,000। इट मींस 1,20,000 तक का जो डीआरआर होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2016 की बात करते हैं। तो 2016 के रिडम्पशन जब हम करने जाएंगे, तो उसके पहले रूल क्या है कि उसके ठीक पहले वाले 31 मार्च तक डीआरआर बनना चाहिए। डीआरआर हमने टोटल बना के रख दिया है। उसके ठीक पहले 30 अप्रैल को उतना इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, 7000 डिबेंचर के बराबर, यानी 7000 इंटू 200, यानी 14 लाख रुपीस के बराबर आपका 15% डीआरआई बन जाना चाहिए। तो आपने पहले से 6000 का डीआरआई बना चुका है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशनल जो 1000 डिबेंचर रिडीम करना है, सिर्फ उसका ही डीआरआई बनाना है। क्या होगा? ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर चलते हैं, 2015 अप्रैल 30। यहां फिर आप डीआरआई बनाओगे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। पूरा का डीआरआई नहीं बनाओगे, एडिशनल जो 1000 डिबेंचर रिडीम करना है 200 रुपीज का, 2 लाख इंटू 15% 30,000, यानी अब आपका टोटल डीआरआई कितना हो चुका है? पहले आपने 180 किया, अब 30 और कर दिया, तो 210 हो गया। अब आप 210 देख लो, 210 इक्वल है कि नहीं? 7000 इंटू 2, 14 लाख। 14 लाख का 15% 2,10,000 आएगा। तो आपने डीआरआई बना लिया। फिर आप क्या करोगे? इन कैश करोगे? नहीं सर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में फिर 7000 डिबेंचर ही रिडीम करना है, तो इन कैश करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे क्या कर दें? रिडम्पशन कर दें। रिडम्पशन की इनकी सेम 8% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितने का डिबेंचर रिडीम करना है? 7000 इंटू 200, यानी 14 लाख। 14 लाख में एल फॉर लैख, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, दिस इज 30,000। ओके, ये सेकेंड ईयर आपने रिडम्पशन कर दिया। रिडम्पशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। देख लो कितना स्टेप बाय स्टेप आपको चीज पैर रखना है। एक एंट्री बीच में मिस हुई, उस पर मार्क्स कट जाएंगे आपके। फिर उसके बाद डीआरआर को ट्रांसफर कर देंगे कहां? जनरल रिजर्व में। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे सर, वही ना 7000 इंटू 200 के बेसिस पे। यस, वैसे ही जैसे यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनेट निकाला है, 6 लाख कितने डिबेंचर का था? 30,000, तो 7000 डिबेंचर का कितना होगा उस हिसाब से। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं ये भी बता रहा हूं, जितना डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हैं सिर्फ उसी का 10% आप जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो। जैसे यहां आपने 12 लाख का डिबेंचर रिडीम किया था, तो उसका 10% कितना आएगा? 1,20,000, क्योंकि डीआरआर कितना बनाते हैं? 10% के हिसाब से, तो 1,20,000 डीआर जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा। यहां आपने कितना डिबेंचर रिडीम किया? 14 लाख का, तो
तो 14 लाख का 10% कितना आएगा? 1,40,000। उतना आप लोग क्या करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो ये सेकेंड ईयर का काम खत्म हो गया। अब हम जब थर्ड ईयर की तरफ बढ़ेंगे, अब जब हम लोग थर्ड ईयर की तरफ बढ़ेंगे तो थर्ड ईयर में हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें फिर 7,000 डिबेंचर को क्या करना है, रिडीम करना है। तो 7,000 डिबेंचर को फिर अगेन रिडीम करना है, तो यहां पर हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले साल ही 7,000 डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए डीआरआई बना लिया है। तो डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सर इन कैश करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर हमें 10,000 डिबेंचर और रिडीम करना है, तो इसलिए इन कैश भी नहीं करना है। सीधे आप 2017 में क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे और प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डीआरआर ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसको नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, सो इन द ईयर 2017 मार्च 31 आप सीधे क्या करेंगे, डिबेंचर को रिडीम करेंगे। 8% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना डिबेंचर, कितने का है, 7,000। अगेन 14 लाख, क्योंकि डीआरआई आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। और डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 14 लाख। ठीक, और प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीआरआर में, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। फिर वही ट्रिक लगाएंगे, 14 लाख का 10% डीआरआर कहां ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में 1,40,000। अब हम लोग चलते हैं लास्ट ईयर दैट इज 31 मार्च 2018। ऑन 31 मार्च 2018 आपको क्या करना है, रिडम्पशन करना है। लेकिन इसके लिए भी आपको शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि इसके ठीक पहले 31 मार्च तक आपका जनरल रिजर्व बन जाना चाहिए, डीआरआर बन जाना चाहिए। वो ऑलरेडी पहले हमने 2014 तक बना लिया है सर, पहली रिक्वायरमेंट पूरी। दूसरा, डीआरआई 15% बनना चाहिए। तो सर ऑलरेडी हमने 7,000 डिबेंचर तक का डीआरआई बना के रखा हुआ है, उसको इन कैश नहीं किया। तो एडिशनल हमको कितने की जरूरत है, एडिशनल हमको 3,000 डिबेंचर की और जरूरत है। तो उसी के ठीक पहले 2017 अप्रैल 30 को हम क्या बनाएंगे, डीआरआई बना लेंगे। पहले कितने तक का डीआरआई बन चुका है, पहले 6,000 का बनाया, फिर 1,000 का बनाया। यहां बनाया नहीं क्योंकि इक्वल अमाउंट, इक्वल डिबेंचर रिडीम करना था। यहां 3,000 एडिशनल रिडीम करना है। सो 3,000 इंटू 200 यानी 6 लाख का 15%, यानी कि 90,000। यानी आपने टोटल अब 10,000 तक के डिबेंचर का डीआरआई बना लिया, क्योंकि पहले 7,000 तक का डीआरआई बन के रखा हुआ था। अब आपने 3,000 और बना लिया, तो बन गया आपका टोटल 10,000 तक के डिबेंचर्स का आपने क्या कर लिया, डीआरआई बना के रख लिया। वेरी गुड। अब इन कैश करेंगे रिडम्पशन के डेट पे। इन कैश के लिए क्या शर्त होती है, रिडम्पशन के डेट पे अभी हम यहां इन कैश नहीं किए, यहां इन कैश नहीं किए, यहां नहीं किए। यहां क्यों इन कैश करेंगे 2018 मार्च 31 को, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट ईयर कोई रिडम्पशन नहीं करना है। 31 मार्च 2018 इज द लास्ट डेट फॉर द रिडम्पशन, और इस डेट पे पूरा डीआरआर, पूरा जो डिबेंचर है वो पूरा का पूरा रिडीम्ड हो जाएगा। इसलिए 31 मार्च 2018 में आप पूरा डीआरआई इन कैश करेंगे, पूरा डीआरआई आप इन कैश करेंगे। पूरा डीआरआई मतलब फर्स्ट ईयर आपने 6,000 डिबेंचर के हिसाब से कितना डिबेंचर डीआरआई बनाया था, फर्स्ट ईयर 6,000 टू 12 लाख का 15%, 1,80,000 का डीआरआई बनाया था। प्लस सेकेंड ईयर आपने कितना डीआरआई बनाया, 30,000। थर्ड ईयर डीआरआई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उतना ही डिबेंचर रिडीम करना था, ऑलरेडी पहले से बन के रखा हुआ था। फोर्थ ईयर आपने क्या किया, 90,000 बनाया। तो टोटल आपने कितना डीआरआई बना लिया, 1,80,000, 1 लाख, 2 10 3 लाख। आपने 3 लाख डीआरआई बनाया था। अब आप इसको ऐसे भी जोड़ के देख लो, 10,000 डिबेंचर टोटल रिडीम करना था, उसका 200 रुपीज के हिसाब से फेस वैल्यू क्या हो गई, 2 लाख, सॉरी 20 लाख। 20 लाख का 15% कितना होता है, 3 लाख। आपने टोटल डीआरआई 3 लाख बनाया भी है, यानी आपने शर्त पूरी किया है जो सेबी ने आपको शर्त दी है
कि इस शर्त को पूरा करने के बाद ही आप डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। हो गया बात खत्म। यहाँ पर अब क्या करना है सर, आपने डीआरआई बनाया, डीआरआई इन कैश किया, अब लास्ट डिबेंचर को रिडीम कर दो। रिडीम करने के लिए एंट्री क्या होती है, 8% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितने के, 20 लाख, ठीक है, 10,000 टू 200, 20 लाख हो गया। और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, उसी के बाद यहां से कंटिन्यू कर लीजिएगा यहां, ठीक। डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना होगा, 20 लाख। और फिर लास्ट में डीआरआर को आप ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व में। मैंने आपको दो ट्रिक बताया, या तो प्रोपोर्शनेट निकाल लो कि 6 लाख डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 10, यानी 1/3 आपको ट्रांसफर करना है कहां पे, जनरल रिजर्व में, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन। या तो आप जितना रिडम्पशन कर रहे हो, कितना रिडम्पशन कर रहे हो, 20 लाख, 20 लाख का 10% कितना आएगा, 2 लाख। आप ऐसे भी जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दे सकते हो, डीआरआर को ट्रांसफर कर सकते हो जनरल रिजर्व में, या प्रोपोर्शनेट भी निकाल सकते हो। प्रोपोर्शनेट कैसे निकल सकता है, टोटल डीआरआर बनाया 6 लाख, कितने डिबेंचर का, 30,000 डिबेंचर का, और कितना रिडीम कर दिया इस साल, 10,000, तो 1/3 के हिसाब से भी 2 लाख अमाउंट ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। एंड इससे ज्यादा, इससे टफ, इससे लेंथी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, और शायद मैं काउंट भी नहीं कर पाया हूं कि कितनी जनरल एंट्रीज हुई हैं इस क्वेश्चन नंबर 14 में। हर एंट्रीज का अपना स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, तो अगर एग्जाम में 1-2 एंट्रीज भी अगर मिस होती है तो उस पर स्टेप मार्किंग के बेसिस पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस तरह से आप एक सिंपल वर्किंग नोट बना लीजिए, ताकि बार बार आपको पेपर उठा के देखने की जरूरत ना पड़े। फिर उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए, और उस फॉर्मेट में जनरल का जो फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, उसको बनाने के बाद प्रॉपर नरेशन के साथ you will pass the journal entries in order जो कि सेबी ने या कंपनीज एक्ट ने आपको प्रोवाइड किया है, कि रिडम्पशन के पहले आपका डीआरआर बन जाना चाहिए, रिडम्पशन के पहले 15% के अमाउंट से डीआरआई बन जाना चाहिए। तो ये सारे रूल्स, ये सारे जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए आपको डिबेंचर को क्या करना है, रिडीम करना है। सो प्लीज note down the solution of the question number 14. So after solution of the question number 15, let's we conclude the last chapter of part A, the chapter number, I hope ये chapter number 9 है आपका, yes, accounting for company, redemption of debenture. So ये जो पूरा पार्ट ए की जो जर्नी थी, यू कैन सी दैट इसमें हम लोगों ने 3 सेगमेंट में बांटा है। सीबीएसई ने जो पार्ट ए अकाउंटेंसी क्लास 12 का, उसको 3 सेगमेंट में बांटा है। पहला है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसमें लगभग 5 चैप्टर है। फंडामेंटल है, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सो 5 चैप्टर। और उसके बाद जो थर्ड सेगमेंट है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज अपना कैसा अकाउंटिंग करती है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो ऑन 3rd August 2021 for the session, academic session 2021-22, we almost complete the part A। और इस पूरे जर्नी में हम लोगों ने हर तरह के प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन से हम लोग पार्ट बी डिस्कस करेंगे, एंड पार्ट बी इज प्योरली रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की बात करते थे, और जो पार्ट बी है वो टोटली उसका फोकस कंपनीज से है, उसका रिलेशन पार्टनरशिप और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एकदम नहीं है। इसलिए पार्ट बी स्टार्ट करने से पहले हमें कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने ये जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है, दैट इज इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये चैप्टर है इजी, बट इट इज totally depend upon the various rules and regulations which are given by SEBI and which are given in the Companies Act 2013 as well as the Companies Rules 2014। तो उसमें कई तरह के consequences हैं, कई तरह के rules हैं, और उन सारे rules को हमें follow करते हुए क्या करना है,
we have to pass a journal entries. Okay, so आई होप कि हम लोगों ने पार्ट ए में जितने भी चैप्टर्स डिस्कस किए होंगे, ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इजली अंडरस्टैंडेबल बाय यू. सो आज के लिए इतना ही. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.